ये है एबीसी न्यूज एजीटी लाइव। This is ABC News AGT Live। हम सीखे होंगे इससे, क्योंकि अगर हम वापस जाते हैं तो कहीं ना कहीं नेचर जो है वो उसको उसी तरीके से डील करेगा मेरे ख्याल से। तो इस एरिया में एक बड़ी इंपॉर्टेंट इशू जो उठा है वो है कि हम एनवायरनमेंट को कितना महत्व देते हैं। I've been here for a day, little over a day. I've been going around seeing the beautiful state, seeing the green areas in the state, limitedly, but yes, seeing the gorges which are there, and seeing people living as I traveled in smaller places, but possibly content in the area where they are living. You have a large population of the original inhabitants of the state who have their own traditions, have their own conventions, and they welcomed at some stage, led by the Maharaja, the population, the large Bengali population which came and migrated into it. So that's an example of how people can be welcomed from outside into it, which the Advocate General mentioned. And both have lived in harmony. I think that's the most important aspect, and jointly in the development. The question also arises, what is development? Is development merely a better infrastructure, or is it a better quality of life? And then going back to the question of what would be the quality of life, we sometimes feel that some of our forefathers lived better lives than us. It's a very delicate balancing which has to take place as the effect of modernization, which they say, where there is the science provides certain facilities and benefits to us. Yet there are certain simplistic ways of the human existence which have their own importance. And this 1 year of seclusion to being yourself, I think would have given us an opportunity to introspect and think as to what is that we can do to improve our life in terms of real quality. I think personally I find it has also taught me as to how many things are lying and how many things we at times tend to buy without knowing the requirement of whether we need them or not. And we search out and now see that let's utilize what you have. Interestingly, as I said, I suddenly found there were just too many clothes. There was nowhere to wear them and go. The other aspect I would like to just mention is that what is the need of a legal system? The need of a legal system is that people should not decide the difference of perception based only on their perception. You need some third party to resolve the dispute if it arises. The importance is also that you don't. कहूंगा जैसे कलकत्ता से आपको दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी में भी चाय का बागान बहुत है, किंतु कलकत्ता से बागडोगरा का प्लेन फेयर कितना है, डिस्टेंस कितना है? मिनिमम 6 से 10,000 तक टिकट रहता है। कलकत्ता से अगरतला का डिस्टेंस कितना है, कितना समय लगता है? और पहले आप बुक करके लाके तो 1,500 2,000 में भी टिकट मिल जाती है। देश में 2 स्टेट है, एक बंगाल और दूसरा गुजरात। कुरुशी साहब है तो जानते ही है, ये दोनों स्टेट के लोग बहुत घूमता है। साल में एक बार नहीं घूमे तो उनको लगेगा तो कुछ छूट गया उनके जीवन से। किसी भी डेस्टिनेशन में हम जाएंगे, चाहे वो स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन हो और चाहे तो जो हमारे प्राकृतिक जो डेस्टिनेशन है, उसमें आपको बंगाली और गुजराती मिल जाएगा, मिलेगी। मैं तो कहीं घुमा, मुझे नहीं देखा जब वहां इन दोनों को साथ मेरा मुलाकात नहीं हुई। तो हमारे पास बंगाल नजदीक है, खान पान रहन सहन लगभग एक ही जैसा है। तो बंगाल के लोगों के लिए सबसे बड़ा डेस्टिनेशन त्रिपुरा हो सकता है, नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं।
होगा ही होगा। जो मैं कह रहा था, जो मैरिज डेस्टिनेशन भी यहां बनाया जाए, तब फीलिंग होगा कलकत्ता से बाई आवर्स आए हैं। हमारे त्रिपुरा के अंतिम व्यक्ति भी फ्लाइट चल रहा था, क्योंकि आज ट्रेन आ गया, राजधानी एक्सप्रेस पहुंच गई, लेकिन एक समय एक ही नेशनल हाईवे और एयरवेज के सिवा रास्ता ही नहीं थे। चाहे कष्ट करके भी टिकट खरीद के बाई एयर ही कलकत्ता जाना पड़ता था, त्रिपुरा के बाहर। उस कारण से लगभग सभी लोग कभी ना कभी एयर जर्नी कर ही चुका है, किंतु बंगाल के सब लोग एयर जर्नी नहीं किया, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ता, जरूरत ही नहीं पड़ता। तो कहीं डेस्टिनेशन होगा तो त्रिपुरा में बाई एयर आना, उसके बाद विद इन एयरपोर्ट के 10-15 किलोमीटर के अंदर से वो मैरिज डेस्टिनेशन है, तो इसके लाभ त्रिपुरा के लोगों को मिल सकता है और कलकत्ता के लोगों को भी, बंगाल के लोगों को भी मिल सकता है। जरूर होगा। आपने बोला इको टूरिज्म की, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ छबीमुरा है, बहुत अच्छे सुंदर डेस्टिनेशन है, उसको भी हम डेवलप कर रहे हैं। लॉघाट लगाया है, वो बोटिंग की व्यवस्था किया है। हमारे यहाँ वाटर बॉडी है, डुम्बुर है, छोटे छोटे टापू है, बहुत ही सुंदर है, वहां उसको भी डेवलप किया जा रहा है। इस तरीके से हमारे पास प्राकृतिक जो जो डेस्टिनेशन है हम उसको डेवलप कर रहे हैं, और इसको इको टूरिज्म कहलाते हैं। इसमें कोई उस तरीके से कंक्रीट का कुछ बना के उसको खत्म करने की दिशा में नहीं कर रहे थे। स्मृति वन का कॉन्सेप्ट एक बार थोड़ा सा कोशिश जयपुर में हुई थी, किंतु बाद में उसको पार्क बना दिया गया। स्मृति वन की कंसेप्ट ओनली त्रिपुरा में है। क्या है स्मृति वन? स्मृति वन वो है, हमने 6 डेस्टिनेशन त्रिपुरा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से आइडेंटिफाई करके काम करना शुरू किया, जो आपके पूर्वजन की मृत्यु के बाद उसके नाम से, उनके नाम से आप पौधे लगाइए। वो फिक्स है डेस्टिनेशन, कितने एरिया है। मैंने भी लगाया मेरे पिताजी के नाम से, उसके सामने नाम लिखा है स्वर्गीय मेरे पिताजी का नाम, कब लगाया, और उसको ऑनलाइन भी कर दिया है। आप उस साइट में जाके, आप यूके में रहे, बाहर रहे, आपके पूर्वजन के नाम से आप पौधे लगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं, और पौधे बड़ा हो रहे वो भी आप देख सकते हैं। QR कोड है इसमें। क्यों ये कंसेप्ट लाया? इसके पीछे यही है, जो पौधे मेरे पिताजी के नाम से लगाऊंगा, बाद में उसके ऊपर लिखा हुआ है, कोई फॉरेस्ट को खत्म करने के लिए जाएगा, भी रात को काटने के लिए जाके देखेगा उनके पिताजी के नाम से है, एक बार रुकेगा। और उसको रक्षा के लिए हम लोग भी कोशिश करेंगे। मैं भी खोज लेता हूं, मेरे पिताजी के नाम से जो पौधे लगाया था कितना बड़ा हुआ, देखता हूं। इसका मतलब कैसे हम पौधे को बचाने के रास्ता निकालना, इमोशनली जोड़ना उसके साथ। तो इस कंसेप्ट में त्रिपुरा सरकार काम कर रही है, और मुझे बताने में खुशी है, जब हम लोग ऑक्सीजन देने वाले राज्य हैं। हमारे पास 72% फॉरेस्ट एरिया है। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य बड़े मात्रा में ऑक्सीजन माने जीवन दान देते हैं। तो इको टूरिज्म का जो अपने उठाया था, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जुडिशरी सिस्टम, उसको भी डेवलप करने के लिए नए नए बिल्डिंग्स हो, और भी सभी डिस्ट्रिक्ट में सही व्यवस्था हो, उसमें राज्य सरकार काम कर रही है।
और जो चीफ जस्टिस कुरैशी जी ने उन्होंने ये आग्रह किया था, और जस्टिस तलापत्र भी यहां है, जो एक लॉ यूनिवर्सिटी हो त्रिपुरा में। ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं, आपका ही है। ये त्रिपुरा के एक नया पहचान दे सकती है, क्योंकि अच्छे इंस्टीट्यूशन से राज्य को जाना जाता है। बहुत लोगों को लगेगा ये बनने से तो आपको इतना पैसा लगेगा, इतना खर्चा होगा, इससे क्या मिलेगा, इकोनॉमी में क्या होगा। ऐसा नहीं है। आप अच्छे फैकल्टी दे पाए तो उसके नाम से त्रिपुरा को जानेंगे। त्रिपुरा को जानेंगे तो त्रिपुरा को आके समझने की कोशिश करेगा तो त्रिपुरा का रबर प्लांटेशन दिखेगा, आएगा तो छविमुरा दिखेगा, त्रिपुरा का प्राकृतिक सौंदर्य दिखेगा। तो उसके साथ साथ जोड़ के बाकी सब आता है। कोई भी एक जगह में आप आगे जाइए, नाम कमाइए, हाइप उठाइए, बाकी सब आपके साथ अपने आप आते रहते हैं। इसलिए निश्चित ये जो लॉ यूनिवर्सिटी की अपने कंसेप्ट लाया और राज्य सरकार ने इस बार बजट में उसको रख दिया है, और जिस तरीके से आपने बोला आप लोग आए हैं, छोड़ेंगे नहीं, और फैकल्टी को और भी आप लोगों के जो कोलीग्स हैं इनको लेके त्रिपुरा के जो लॉ यूनिवर्सिटी है उसको एक ऊंची पायदान में लेके जाएंगे। मैं आप लोगों को त्रिपुरा वासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग त्रिपुरा के लोगों के बारे में ऐसा सोचते हैं।